امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب ہونے ہی والی ہے۔ دونوں میں حتمی معاہدے کے متن پر اتفاق ہو چکا، اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے کے لیے رابطے میں ہے۔ امریکہ کے ساتھ مجوزہ معاہدے میں جوہری معاملات پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس مرحلے پر امریکی جوہری مطالبات کسی صورت قبول نہیں، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ آبنۂ ہرمز کا مسئلہ اور ایران پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ مجوزہ امن معاہدے کا حصہ۔ باور کرایا کہ آبنۂ ہرمز کا انتظام اب جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس نہیں جائے گا۔ لیبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا۔ الزام لگایا کہ امریکہ کی فطرت ہی وعدہ خلافی ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران دھمکیوں کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ امریکہ ایران معاہدے کے حتمی مسودے پر فیصلہ ساز اداروں کا اجلاس مفاہمت کی یادداشتوں کے متن کو حتمی شکل دینے کے آخری مرحلے میں ہے۔ ممکنہ معاہدے پر دستخط کب اور کہاں ہوں گے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کا بیان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی ہفتے یا پیر تک ایران سے ڈیل ہونے کی توقع، امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ ایران امن معاہدے کی تقریب کے لیے میزبانی کی پیشکش کر دی۔ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کی تقریب جنیوا میں ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ شرکت کریں گے۔ امریکی صدر نے ایران کے منجمد 24 ارب ڈالر فنڈز جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن وہ عوام کی سطح پر یہ اعلان کرنا نہیں چاہتے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا دعویٰ۔ امارات نے ایران کو فنڈز منتقلی سے متعلق خبریں یکسر مسترد کر دیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے زیر گردش خبروں کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا کہ ایران کو منجمد رقم جاری کی گئی، نہ ہی منتقلی ہوئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے امارات پر حملے بند کرنے کی شرط پر ایران کو 10 ارب ڈالرز جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی افواج کا آبنائے ہرمز میں کئی ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی ڈرونز تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ تھے اور اسی وجہ سے امریکی بحریہ نے ان کو مار گرایا۔ روس نے ایک بار پھر افغانستان میں عالمی اور علاقائی دہشت گردی کی موجودگی پر پاکستانی موقف کی تائید کر دی۔ روسی وزارت خارجہ نے افغانستان میں عالمی دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہوں اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی پر سیکیورٹی الرٹ جاری کیا۔ روسی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان خطے بالخصوص پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ حکومت نے مسلسل 5ویں بار پیٹرول سستا کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کی کمی، نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کے نرخ 2 روپے کمی کے بعد 378 روپے 78 پیسے ہو گئے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 49 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، نئی قیمت 282 روپے 19 پیسے مقرر۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام پر سب سے بڑا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1676 ارب روپے سے زائد کی وصولی کا تخمینہ۔ 18 خرب 77 ارب 10 کروڑ روپے حجم کا وفاقی بجٹ پیش۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8 خرب 5 ارب روپے، دفاعی اخراجات کے لیے 3000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کریں گے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف، 4 سلیبز پر ٹیکس میں کمی اور سرچارج ختم کرنے کا اعلان۔ سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور پینشنز میں 7% تک اضافے کا اعلان۔ کم از کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز۔ رواں سال آسان مالی سہولیات بڑھانے کے لیے پاکستان میں ڈیجیٹل فائنانسنگ، ہاؤسنگ اور ہنرمندی کے نئے پروگرامز متعارف کرا دیے گئے۔ حکومتی اقدامات مالی شمولیت، روزگار، رہائش، زرعی ترقی اور توانائی کی بچت کے ذریعے معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ کراچی کے علاقے رنگی ٹاؤن سیکٹر 14 میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 2 نوجوان جاں بحق، 2 گرفتار۔
कराची के जिला गरबी थाना इकबाल मार्केट की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक दो तरफा फायरिंग में एक जख्मी समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। एक मुलजिम फरार। मुलजिमान की शनाख्त फराज, नसीर, रमजान और इकबाल के नामों से हुई। 2 गैर कानूनी पिस्टल्स, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। साहिवाल पुलिस की कराची में कार्रवाई। अगवा होने वाला 10 साला बच्चा बाहिफाजत बासियाब। अगवाकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्फी बच्चा तलहा वरसा के हवाले। PDMA सिंध की जानिब से गर्मी की शिद्दत में कमी और बाज़ अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। आज और कल मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी, जामशोरो, दादू, हैदराबाद और पीरपुर खास में बारिश का इम्कान। टंडोह, अलहयार, खैरपुर, उमरकोट और थरपारकर में आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़कर 33 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक ने मोदी की नाअहल हुकूमत को हिलाकर रख दिया। CJP की क़यादत में भारतीय नौजवान का लखनऊ की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। करप्ट भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। और मैक्सिको के बाद कनाडा और अमेरिका भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेज़बान कनाडा और बॉस्निया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। यूरुग्वे के खिलाफ मैच अमेरिका ने 4-1 से जीत लिया। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब होने ही वाली है। दोनों में हतमी मुआहदे के मतन पर इत्तेफाक हो चुका। अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए रावते में है। अमरीका के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे में जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं होगी। इस मरहले पर अमरीकी जौहरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। आबनाए होर्मुज़ का मसला और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुजव्वज़ा अमन मुआहदे का हिस्सा। बावर कराया कि आबनाए होर्मुज़ का इंतज़ाम अब जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका की फितरत ही वादा खिलाफी है। दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएगा। अमरीका ईरान मुआहदे के हतमी मुसव्वदे पर फैसला साज इदारों का इजलास मुफाहमत की याददाश्तों के मतन को हतमी शक्ल देने के आखिरी मरहले में है। मुमकिना मुआहदे पर दस्तखत कब और कहाँ होंगे फिलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई का बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसी हफ्ते या पीर तक ईरान से डील होने की तवक्को। अमरीकी वेबसाइट का दावा। स्विट्जरलैंड ने अमरीका ईरान अमन मुआहदे की तकरीब के लिए मेज़बानी की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जनेवा में हुई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमराह शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के मुंजमद $24 अरब फंड्स जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन वो अवाम की सतह पर ये ऐलान करना नहीं चाहते। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दावा। अमारात ने ईरान को फंड्स मुंतकली से मुतालिक खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने ज़ेरे गर्दिश खबरों को झूठ और बेबुनियाद करार दिया। दो टोक पैगाम दिया कि ईरान को मुंजमद रकम जारी की गई, ना ही मुंतकली हुई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने अमारात पर हमले बंद करने की शर्त पर ईरान को $10 अरब जारी करने पर रजामंदी जाहिर करने का दावा किया था। अमरीकी अफवाज का आबनाए होर्मुज़ में कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स तिजारती जहाज रानी के लिए खतरा थे और इसी वजह से अमरीकी बहरिया ने उनको मार गिराया।
रूस ने एक बार फिर अफगानिस्तान में आलमी और इलाकाई दहशतगर्दी की मौजूदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाहों और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान खित्ते बिलखुसूस पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। हुकूमत ने मुसलसल 5वीं बार पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी, नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 2 रुपए कमी के बाद 378 रुपए 78 पैसे हो गए। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 49 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 282 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम पर सबसे बड़ा बोझ डालने की तैयारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1676 अरब रुपए से जायद की वसूली का तखमीना। 18 खरब 77 अरब 10 करोड़ रुपए हजम का वफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8 खरब 5 अरब रुपए, दिफाई अखराजात के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 7% तक इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। रवां साल आसान माली सहूलियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंसिंग, हाउसिंग और हुनरमंदी के नए प्रोग्राम्स मुतारिफ करा दिए गए। हुकूमती इक़दामात माली शमूलियत, रोजगार, रिहाइश, ज़रई तरक्की और तवानाई के बचत के जरिए मुआशी तरक्की के नए मौक़े पैदा करेंगे। कराची के इलाके रंगी टाउन सेक्टर 14 में शादी के तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 नौजवान जाम बहक, 2 गिरफ्तार। कराची के जिला गरबी थाना इकबाल मार्केट की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग में एक जख्मी समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। एक मुलजिम फरार। मुलजिमान की शनाख्त फराज नसीर, रमजान और इकबाल के नामों से हुई। 2 गैर कानूनी पिस्टल्स, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। साहिवाल पुलिस की कराची में कार्रवाई। अगवा होने वाला 10 साल बच्चा बाहिफाजत बासियाब। अगवाकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्फी बच्चा तलहा वरसा के हवाले। PDMA सिंध की जानिब से गर्मी की शिद्दत में कमी और बाज़ अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। आज और कल मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी, जामशोरो, दादू, हैदराबाद और पीरपुर खास में बारिश का इम्कान। टंडोह, अलहियार, खैरपुर, उमरकोट और थरपारकर में आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़कर 33 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक ने मोदी की नाअहल हुकूमत को हिलाकर रख दिया। CJP की क़यादत में भारतीय नौजवान का लखनऊ की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। करप्ट भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। और मैक्सिको के बाद कनाडा और अमेरिका भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेज़बान कनाडा और बॉस्निया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। यूरुग्वे के खिलाफ मैच अमेरिका ने 4-1 से जीत लिया।